Let's start with a new essay, that is essay 240. Essay 240, auditor's responsibility relating to the fraud in an audit of financial statement. So now, what does this essay 240 deals with? So it deals with responsibilities relating to the fraud. So this essay deals with auditor's responsibility relating to the fraud in audit of financial statement. Now, misstatement कब कब हो सकता है? So misstatement can be from fraud or error. तो अब fraud क्या है? एरर की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे 240 में फ्रॉड की बात होती है। तो फ्रॉड क्या होता है? तो क्या होता है? इट इज एन इंटेंशनल एक्ट। कौन कौन करता है? बाय मैनेजमेंट, ईसीडब्ल्यूजी, एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी। क्यों करता है? फॉर गेटिंग अनजस्ट एंड इलीगल एडवांटेज। सो फ्रॉड इज एन intentional act is an intentional act by one or more parties including management, ECWG, employee or a third party with the intention to gain unjust and illegal advantage. That's it, the definition of fraud. Now, what is it concerned with? So fraud is concerned with fraud that causes material misstatement in financial statement. So auditor is concerned with fraud that causes material misstatement in financial statement. Now, what are the types? Material misstatement due to fraudulent financial reporting, material misstatement due to misappropriation of asset, due to fraudulent financial reporting, and due to misappropriation of assets, and due to misappropriation of assets. Now, who is the responsibility of management? So, responsibility of management, he is a primary responsible to prevent and detect the fraud. To prevent and detect the fraud, primary responsibility is with management. Now, what is the responsibility of auditor? Obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement by fraud or error. वही जो अपना main definition है फिर. Due to inherent limitations, there is an unavoidable risk that that misstatement will some misstatement may not be detected. Okay? कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट तो ऐसी होगी जो डिटेक्ट नहीं होगी, तो वो अनअवॉइडेबल रिस्क है। इवन तो ऑडिट इज प्रॉपर्ली प्लान, अगर प्रॉपर्ली प्लान भी किया बट वो इनहेरेंट लिमिटेशन है ही ऑडिट की कि भाई अनअवॉइडेबल रिस्क हो गए ही, मिसस्टेटमेंट मिलेंगे। नाउ, मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं डिटेक्ट करना इज मोर नहीं करना इज मोर prone. So risk of not detecting material misstatement relating from management is greater than employee fraud. मतलब मैनेजमेंट फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल है than the employee fraud. Why? Because management can manipulate accounting records or override controls and can use sophisticated techniques to suppress the frauds. तो मैनेजमेंट फ्रॉड को पकड़ना ज्यादा मुश्किल है than the employee fraud. Now, identify and assess the ROMM, assertion and financial statement level, determine overall response to the address risk. So auditor shall identify and assess ROMM due to fraud at financial statement level and assertion level and shall determine overall response to fraud. और रिपोर्टिंग कहाँ करनी है? अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अंडर क्लॉज 11 ऑफ कारो 2020। तो इन दोनों जगह पे रिपोर्टिंग करनी है फ्रॉड की। He is responsible. Auditor is responsible to report fraud under 143 subsection 12 and clause 11 of Caro 2020. Now, fraudulent financial reporting. It involves intentional material intentional misstatements or omission. It involves intentional misstatements or omission of amount or disclosure in financial statement to deceive the users, to deceive the users of financial statement, the users of financial to deceive the users to deceive the users of financial statement. तो fraudulent financial reporting क्या होता है? Fraudulent financial reporting involves intentional misstatement or omission of amount or disclosure in financial statement to deceive the users of financial statement, now how is it accomplished कैसे होता है? तो एक मैन दो मिस, हाउ इट इज अकम्प्लिश्ड? एक मैन दो मिस, तो एक मैन मैनिपुलेशन falsification or alteration of accounting records, manipulation, falsification or alteration of accounting records. एक मैन और दो मिस, मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन और मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो एक मैन मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकते हैं। तो इट ऑफन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स यूजिंग टेक्निक्स। तो कैसे कैसे मैनेजमेंट ओवरराइड करती है कंट्रोल्स को? तो मिरेकल से
तो मेरे का एम से क्या है, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंटेंशनल ओमिशन कर सकती है। फिर रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस एंट्रीज, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस एंट्रीज, ए से अल्टरिंग रिकॉर्ड्स, सी से कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट, कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, ई से एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। तो मैनेजमेंट कब कब ओवरराइड करती है कंट्रोल, तो मिरेकल्स है मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आई से इंटेंशनल ओमिशन, आर से रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस एंट्रीज, ए से अल्टरिंग रिकॉर्ड्स, सी से कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, एंड ई से एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। तो मिरेकल मैनेजमेंट ओवरराइड कैसे करती है कंट्रोल को, मिरेकल्स है ना। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट क्या है, थेफ्ट ऑफ एंटिटीज असेट इन स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट्स, वो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स है। अकम्प्लिश कैसे होता है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, अकम्प्लिश कैसे होता है, दो करंट एसेट दो फिक्स एसेट, दो करंट एसेट दो फिक्स एसेट, दो करंट एसेट दो फिक्स एसेट। तो पहले करंट एसेट क्या है, एम्बिजलिंग कैश रिसिप्ट पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसिप्ट, तो ये कैश हो गया अपना और ये हो गया अपना डेटर्स। तो दो करंट एसेट्स, embezzling cash receipts, pay for goods and services not received। फिर दो फिक्स एसेट, फिजिकल एसेट एंड स्टीलिंग फिजिकल एसेट एंड यूजिंग एंटिटीज असेट फॉर पर्सनल यूज। तो दो फिक्स एसेट, स्टीलिंग फिजिकल एसेट और यूजिंग एंटिटी असेट फॉर पर्सनल यूज। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट अकम्प्लिश कैसे होता है, दो करंट एसेट दो फिक्स एसेट, दो करंट एसेट दो फिक्स एसेट। Now, fraud risk factors. Fraud risk factors क्या है? Events or conditions that indicate incentive or pressure, that indicates incentive or pressure to commit fraud or provide an opportunity to commit fraud. Events or conditions that indicate incentive or pressure to commit fraud or provide an opportunity to commit fraud. Events or conditions that indicate incentives or pressure to commit fraud or provide an opportunity to commit fraud. Classified POA. Pressures, opportunities, and attitude. Poor. It is classified as poor. Pressures, opportunities, and attitude. Now, fraudulent financial reporting में pressure poor कहाँ कैसे कैसे लगता है वो देखा जाए, तो पहले तो प्रेशर देखते हैं। तो अगर इंक्रीज कंपटीशन है तो प्रेशर होगा कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे। अगर कस्टमर डिमांड कम हो रही है तो रोजी पिक्चर दिखाने के लिए अपन कर सकते हैं। फिर नेगेटिव कैश फ्लोज है तो उसको चेंज कर सकते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर न्यू अकाउंटिंग स्टेट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आई है तो फिर अपन कुछ जो करने का सोच सकते हैं। फिर नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। तो इन ये सब चीज का प्रेशर रहता है जिससे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए एक मैनेजमेंट तैयार हो जाती है। वो इंक्रीज कंपटीशन, डिक्रीजिंग कस्टमर डिमांड, नेगेटिव कैश फ्लोज एंड न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आई है। फिर नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेट लेने के लिए जरूरत पड़ सकती है कॉम्पिटिटिव रहने के लिए। फिर अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ है, सो वेयर आर द अपॉर्चुनिटीज। तो मैनेजमेंट कब कब एफएफआर करती है, तो पहला था सिग्निफिकेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट इन ऑर्डिनरी। तो रिलेटेड पार्टी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो नहीं है वो करके। फिर एस्टिमेट, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स, मतलब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है जहाँ जहाँ मैनेजमेंट एफएफआर कर सकते हैं। तो पहले तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कर सकती है, फिर एस्टिमेट में हो सकता है। फिर कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन आता है, सिग्निफिकेंट अनयूजुअल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, तब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स और बैंक और ब्रांच ऑपरेशंस इन टैक्स हेवन, अगर ब्रांच के ऑपरेशंस टैक्स हेवन कंट्रीज में है तो वहां पे ऐसा सोच सकते हैं कि भाई यहाँ यहाँ का प्रॉफिट वहां दिखा दे तो टैक्स कम भरना पड़े। तो वही है सिग्निफिकेंट ब्रांचेस इन टैक्स हेवन। नाउ एटीट्यूड्स और rationalizations. Non-financial management have increased participation in accounting procedures. Non-financial management excessive participation in accounting policies selection, मतलब इसको फिनेंशियल का नॉलेज नहीं है, उसको ऐसा बोल रहा है कि भाई ये पॉलिसी सिलेक्ट करना हो, ये पॉलिसी है भाई क्या उसको पता ही नहीं है तो क्यों उसको करवा रहे हो। फिर नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन, आगे भी वायलेशंस किए। फिर इंक्रीज इंटरेस्ट इन स्टॉक प्राइस, उनको वही है कि भाई मेरा स्टॉक प्राइस और अर्निंग्स इंक्रीज होनी चाहिए। फिर मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नोन significant deficiencies in internal control on a timely basis. Management failing to remedy known significant, मतलब जो नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है, नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज पता चल गई है बट मैनेजमेंट उसको क्योर करने का सोच ही नहीं रही है। इंटरनल कंट्रोल और टाइमली बेसिस पे उसको क्योर करने का नहीं सोच रही। फिर रिकरिंग अटेम्प्ट्स बाय मैनेजमेंट टू जस्टिफाई इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो उसने इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की है और उसको जस्टिफाई कर रही है रिकरिंग अटेम्प्ट्स के, भाई हमने बराबर ही किया, वो अपनी गलती नहीं मान रही, तो वो एटीट्यूड जताता है कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा होगा। फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, उसमें प्रेशर क्या क्या है, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, भाई कर्जा लेके बैठा है तो भाई चोरी कर लेते हैं अपने एंटिटी में से। फिर एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉय, ले ऑफ हो जाने वाला है उसका।
फिर रिवॉर्ड इनकंसिस्टेंट विद बेनिफिट्स, तो उन सब में प्रेशर है कि भाई चल भाई चोरी कर लेते हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, उसके हाथ में लार्ज अमाउंट है, इन्वेंटरी इन स्मॉल साइज एंड हाई वैल्यू, फिक्स्ड एसेट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई वैल्यू, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। फिर एटीट्यूड क्या है, डिसरिगार्ड, इंटरनल कंट्रोल है भाई जाने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनल कंट्रोल का। फिर बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससेटिस्फेक्शन, उसको डिससेटिस्फेक्शन है, फिर उसकी लाइफस्टाइल बदल गई, उसको बिजनेस क्लास में ही घूमना है, तो चेंजेस इन लाइफ से। तो ये सब एटीट्यूड है जिससे पता चल सकता है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है कि नहीं। फिर अगर इम्पॉसिबिलिटी टू कंटिन्यू द impossibility to continue the performance of audit, तब क्या करना था, तो determine the PLR, determine professional and legal responsibilities to report the person who made audit appointment or regulatory authorities regarding fraud, consider to withdraw if legally permitted, अगर legally permitted है तो withdraw करने का सोचो। If auditor withdraws, discuss with appropriate level of management, discuss with appropriate management plus TCWG plus other reasons दे दो, and determine PLR requirements to report person who made the appointment। तो अगर कोई प्रोफेशनल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि किसी को रिपोर्ट करना है तो वो रिपोर्ट कर दो। सो दैट वाज इट। ऐसे डू 40 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।